دریائے چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی کے باعث تباہی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ آبی ریلے ہر سمت سے بستیوں کو لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ لاکھوں افراد گھر بار، مال مویشی اور جمع پونجی کھو چکے ہیں۔ لوگ فلڈ ریلیف کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ سودرہ کے علاقے رانا میں بروقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے۔ سیلابی پانی سے راستے بند ہونے سے حاملہ خاتون بروقت اسپتال نہیں پہنچ سکی اور راستے میں ہی 3 بچوں کو جنم دیا۔ فوری طبی امداد نہ ملنے سے تینوں بچے انتقال کر گئے۔ نومولود میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل تھا۔ پنجاب میں اب تک 2200 کے قریب دیہات متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے دوران اموات کی تعداد 33 ہو گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا کہتے ہیں دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے۔ 2 ستمبر کو دریائے راوی کا پانی چناب میں داخل ہوگا۔ تریمو بیراج پر پانی کا بہاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ریلا 4 ستمبر کو پنجند اور 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا۔ وفاق کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے آج اضافی امدادی سامان کے قافلے بھیجے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا امدادی سامان نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد، حافظ آباد، چنیوٹ، جنگ کے سیلاب متاثرین کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو سیلابی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں کو بھرپور تعاون فراہم کرنے کی تاکید کی۔ کہا سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بہاؤ 3,61,000 کیوسک ہے۔ جنگ میں بھی دریائے چناب کا ریلا ملحقہ علاقوں میں تباہی پھیلا رہا ہے۔ 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ ہیڈ خانکی اور قادر آباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی پر 2.5 لاکھ کیوسک کا ریلا گنڈا سنگھ والا طرف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلاب کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ بلوکی پہ الفت مغل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان سے رانا فاروق نے ہمیں جوائن کیا ہے اور جنگ میں قمر زمان موجود ہے۔ رخ کر لیتے ہیں ملتان کا۔ یہ بتائیے کہ رانا فاروق 8 لاکھ کیوسک کا ریلا ملتان میں داخل ہونے کی اطلاعات تھیں ہیڈ محمد والا کے مقام پر۔ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے صورتحال سیلاب کی مزید خراب ہوتی جا رہی ہے اور جو پانی کی سطح ہے دریائے چناب میں وہ بھی ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو 8 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا وہ داخل ہونے جا رہا ہے، جس سے مزید صورتحال خراب ہونے کے امکانات ہیں۔ یہاں پر اس وقت ہم ہیڈ محمد والا روڈ پر موجود ہیں۔ یہاں پر ہم دکھا سکتے ہیں کہ گزشتہ روز تک صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر یہ پانی موجود نہیں تھا، لیکن یہ پانی تیزی کے ساتھ آہستہ آگے پھیلتا جا رہا ہے۔ جو آبادیاں ہیں ان کو نگل رہا ہے، جو لوگوں کے مکانات ہیں وہ منہدم ہو رہے ہیں، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں اور ہزاروں ایکڑ پر جو رقبے ہیں، زرعی رقبے ہیں جن پر فصلیں کاشت تھیں، جن پر آب تھے، وہ زیر آب آ چکے ہیں اور ابھی مزید صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ ریلا قریب آ رہا ہے لوگوں میں خوف و ہراس بھی بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ڈر بھی بڑھ رہا ہے، لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم محمد والا کے اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر اگر پانی کا دباؤ بڑھتا ہے تو یہاں سے بریچ کیا جائے گا، یہاں سے شگاف ڈالا جائے گا تاکہ پانی کو راستہ دیا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ملتان شریف علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں، بستیاں قائم کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو جو اخلاء ہے وہ کروایا جا رہا ہے، ان کو دریائی علاقوں سے، بیڈ کے علاقوں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم نے لوگوں سے بات کی، کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی شکایت دیکھنے کو آئی کہ ضلعی انتظامیہ صرف کاغذی کارروائی کر رہی ہے، لوگوں کی بڑی تعداد وہ دریا کے علاقوں میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو نکالا نہیں گیا، مطلب کہ لیکن ضلع انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 70% لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے رانا فاروق، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ الفت مغل اس وقت ہیڈ بلوکی کے مقام پر موجود ہیں۔ الفت، اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کا انخلاء ابھی بھی جاری ہے اور کس حد تک انخلاء ہو چکا ہے اور امداد کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور تقریباً 2,04,260 کیوسک پانی جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے اور پانی یہاں سے گزرنے والا پانی آگے اکاڑا، ساہیوال، کمالیہ، پیر محل اور ان علاقوں کو متاثر کرتا ہوا یہ آج رات کسی بھی وقت سدرائی پہنچے گا۔ رات کو جب یہاں سے 2,23,000 کیوسک کا بڑا ریلا گزرا تھا جو کہ انتہائی خطرناک تھا، اس نے برے طریقے سے جو آبادی ہے ان کو متاثر کیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 2 روز قبل جو نشیبی علاقے تھے وہاں کے لوگوں کو ریسکیو کر دیا گیا تھا، وہاں کے لوگوں کو وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن جو اس کے بالکل
हेड बर्स्ट के साथ साथ जो ऊंची जगह पर जो आबादियाँ थी उनको नहीं निकाला गया था और रात को वो आबादियाँ बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं और लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं और लोग इमदाद को यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो जो हेड बर्स्ट के साथ साथ जो मकामात है वहाँ की आबादियों को भी रेस्क्यू करे, वहाँ की आबादियों के लिए भी खाने पीने का एहतमाम करे। जो दूसरी बड़ी मुश्किल लोगों के लिए वो ये है कि लोगों के जो जानवर हैं, जो पंजाब में चूँकि मवेशी पालने का एक बहुत बड़ा रुझान है और एक भैंस एक देहाती की सबसे बड़ी सरमाया होती है, उनकी चारे का जो इंतज़ाम है वो अब उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल करना पड़ रहा है क्योंकि पानी जैसे जैसे फैला है और उसने फसलों को तबाह कर दिया और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकई की फसलें और दीगर जो चारा था वो तबाह हो गया। इसके अलावा चावल की फसल को बुरी तरह नुकसान पहुंचा, तो लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल वो भी है। तो अभी भी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि पीछे से पानी की सतह कम हो रही है तो यहाँ पर इम्कान है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो हेड बलोकी के मकाम पर सतह कम होगी। अदरवाइज के पीछे से अगर पानी का मजीद रेला आता है तो फिर यहाँ के मकीनों के लिए, यहाँ के पानी का रेला आएगा तो मसाइल और बढ़ सकते खतरात हैं। भी हैं, जानवरों का चारा भी मौजूद नहीं है, मुतासरीन इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जरा झंग का रुख कर लेते हैं। झंग से हमारे साथ कमर जमान मौजूद है। कमर, ये बताएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी की सतह क्या है और क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर इनखला करवा लिया गया है माल मवेशियों समेत? जी, मैं इस वक्त जंग के बक्कर रोड पर वाक़या बंद पर मौजूद हूँ। बंद के साथ यहाँ पर 5-6 आबादियाँ हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं। दरिया चनाब का सैलाबी रैला इन देहात में दाखिल हो चुका है, जिनमें वजलाना और उसके साथ मगियाना, चक नून, चाह बुच्चे वाला शामिल है। गुज़िश्ता जब हमारी टीम यहाँ पर इस गांव में पहुंची थी मगियाना, नून, कच्चा चक में, तो आप मेरे अकम में जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सारा ये गांव है। मेरे अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये सारी फसलें डूब चुकी हैं, जबकि जब हम गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर फसलें भी नज़र आ रही थी। हम इसी सड़क से, जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये सड़क में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, लेकिन हम इस सड़क से गुजर कर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अंदर गाँव में गए थे, वहाँ जाके हमने कवरेज की थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद से ये मुकम्मल गाँव जो है मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, दाखिली रास्ता बंद हो गया है। इसके अलावा जो सूरत हाल है यहाँ के मकीनों को वैक्यूएट करने की रेस्क्यू 1112 की टीमों ने एक तो जो है वो बर वक्त ऑपरेशन शुरू करके बहुत से लोगों को वैक्यूएट किया है, उनको रेस्क्यू किया है। ज़िले इंतजामिया ने भी 2-3 दिन पहले ऐलानात करवा दिए थे कि पानी इस तरफ आ रहा है, तो लोगों ने अपने मददाब के तहत यहाँ से जो इनखला किया था। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे थे जिनके जहन में ये था कि दरिया चनाब का सैलाबी रेला ज़्यादा नहीं चढ़ेगा और वो अभी तक अपने घरों में मौजूद थे। अभी भी बहुत से लोग जो हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया। रेस्क्यू की टीमें बार बार जा रही हैं, लेकिन वो मकीन नहीं आ रहे। लेकिन दर्जनों जो लोग हैं उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। अगर त्रीमू हेड और जंग में दाखिल होने वाले, एक बात बताइएगा कमर, अभी तो बारिश की इतलात भी हैं, बारिश हो भी रही है जंग में। बारिश अगर होती है, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल अगर हो जाता है तो फिर तो और मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा मकामी आबादियों के, मकीनों के। जी बिल्कुल, बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अभी बहुत हल्की सी फुहार मुख्तलिफ इलाकों में जंग में पड़ रही है। जिस जगह पर हम हैं गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हुई थी और ये जो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी भी जो है वो मज़ीद जो है इस जो नुकसान का सबब बन सकता है। इसलिए लोगों को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो निकले। त्रीमू हेड की अगर बात की जाए तो इस वक्त पानी जो है वो 3,61,633 क्यूसेक से बढ़कर इस वक्त 3,78,461 क्यूसेक तक पहुंच चुका है, जो रात गए तक 4.5 लाख क्यूसेक हो सकता है। जबकि अगले रोज कल जो है 6 से 7 लाख तक रेला जो है वहां त्रीमू हेड से गुजरने का इम्कान है। और इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पानी की रफ्तार की, तो जो यहाँ पे त्रीमू हेड से पहले जो 3 हेड हैं, जो 3 बिराज हैं जिनमें मराला, खानकी और हेड कादराबाद हैं, उन बिराजेस में पानी की रफ्तार जो थी वो सुस्त थी। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर रफ्तार जो है वो तेज़ थी। पानी जो चढ़ा है उसकी जो सतह बुलंद हुई वो तेजी से हुई है। लेकिन यहाँ त्रीमू हेड में पानी की सतह बुलंद होने की रफ्तार बहुत थोड़ी है और त्रीमू हेड पर पानी की सतह जो है वो बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया कमर जमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उल्फत मुगल, राना फारूक, आप तीनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। और तांदलियावाला के माड़ी पतन पुल के करीब हैवी क्रेन फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हल्का दरिया में गिर गया, जिसे दरिया से 2 किलोमीटर दूर निकाल दिया गया। पानी के तेज बहाव से रेस्क्यू कश्ती डूबने से बाल बाल बची। कश्ती का इंजन बंद हो गया और कश्ती में भी पानी भर गया। तो ये वाकया तांदलियावाला के माड़ी पतन पुल के करीब पेश आया, जहां पे हैवी क्रेन फंस गई थी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हल्का दरिया में गिर गया था, जिसे दरिया से 2 किलोमीटर दूर से निकाला गया और पानी के तेज बहाव से रेस्क्यू कश्ती डूबने से बाल बाल बची।
जबकि कश्ती का इंजन भी बंद हो गया और कश्ती में पानी भर गया था। ऊपर बारिश, नीचे पानी, घर, कारोबार सब लुट गया, कुछ भी ना बचा। सैलाब से मुतासरा इलाके में एलसी के लोग सड़क पर आ गए। कहते हैं खाना है ना रहने की जगह, जाएं तो जाएं कहां। पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदोनवा में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई में रावी पतन में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू किया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू किए जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा जा रहा है। इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना खड़ी है। खबर दे रहे हैं आपको, सदर मुमलिकत ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अजहर। कायम सेनेट और कौमी असम्बली ने ये दोनों बिल पास किए थे और इन बिलों की पास होने के बाद इस बिल जो है मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया था। तो सदर मुमलिकत ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की अब मंजूरी दे दी है। ये नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने के लिए सलाहियत को मजबूत बनाएगा और इस बिल के तहत, इस कानून के तहत कानून में शफाफियत और एहतसाब को भी यकीनी बनाया गया है। इस कानून के तहत 3 साल सनसेट क्लास शामिल है ताकि मुद्दत जो है वो एक महदूद रहे और कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इक़दाम जो है वो शामिल किए गए हैं। ये कानून पाकिस्तान को इस वक्त जो सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए इंतहाई अहम और मौसर किरदार अदा करेगा। इस हवाले से अपोजिशन ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को 2 सूबों में जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि इस तरह का कानून पास किया जाए ताकि दहशतगर्दी से निपटा जा सके। तो सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद ये कानून अब बाज़ाब्ता तौर पर ये बिल जो है कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की। कहा, चीन की जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने में सूदमंद साबित होंगे। कुदरती आफात से निपटने के लिए पाक चीन ज्वाइंट लैब जैसे मंसूबों को मजीद फाल बनाया जाएगा। पाकिस्तान में सैलाब से निपटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म आज SCO सरबराही इजलास के इस्तकबालिये में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर उर्दवान से 2 तरफ़ा मुलाकात भी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तियानजिन में लोबान टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। इसहाक डार ने टेक्निकल वोकेशनल ताउन को मजबूत बनाना पायदार इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े पैदा करने के लिए अहम कदम है। दो तरफ़ा ताउन पाकिस्तान के अफरादी वसाइल को मजबूत करता है। भारत में मोदी हुकूमत को एक और धचका लगा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का मुतवक्के दौरा मंसूख कर दिया। सदर ट्रंप ने क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत का वादा किया था। फैसले से नई दिल्ली में मायूसी तारी हो गई। अफसर शाही का ताकतवर बाबू वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर की हिदायत पर भी भारी। वज़ीर तिजारत की हिदायत के बावजूद पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर तरीन अफसर को नुमाइंदगी दिए जाने का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर ख़जाना को याद दहानी का खत लिख दिया। मुशावरत के बगैर शकील मंगनेजो की PRCL इजलासों में शिरकत की हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दी। शकील मंगनेजो वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात होने के बावजूद PRCL में ओहदा बरकरार रखने पर बज़द हैं। तबादले के बावजूद बोर्ड के 15 इजलासों में शरीक हुए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वाज़े किया, शकील मंगनेजो के फैसले ज़ाती हैसियत में तसव्वुर होंगे। वज़ीर तिजारत ने हिदायत की, शकील मंगनेजो के तमाम फैसले वज़ारत तिजारत को भेजे जाएं। शकील मंगनेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास कल अदम तसव्वुर होंगे। जाम कमाल ने खत में लिखा, PRCL बोर्ड की एक्स ऑफिशो पोजीशन वज़ारत तिजारत के सीनियर अफसर को दी जाए। 5वें रोज भी गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन नबी की पुरनूर महफिल का इनेकाद। गवर्नर कामरान तिसोरी ने कहा, ये दिन सबके लिए रहमत है। अल्लाह की रजा में राजी रहना ही असल बंदगी है। नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। आजिज़ी इख्तियार करें। तकब्बुर इंसान को कुफ्र के दहाने तक ले जाता है। अल्लाह को मुनाफिकत पसंद नहीं। गीबत और हसद से बचें। दिलों को साफ रखें। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय मोहब्बत और इस्लाह की नीयत से आगे बढ़ें।
لاہور میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکول کل سے کھل جائیں گے. ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اسکول بند رہیں گے. ڈپٹی کمشنر لاہور کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شہر کے تمام اسکول 1 ستمبر سے دوبارہ کھلیں گے. تاہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قائم اسکول بند رہیں گے. ضلع انتظامیہ کے مطابق والدین اور طلبہ اسکول انتظامیہ سے رابطے میں رہیں. تمام اسکول محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ہدایت پر عمل کریں. ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری کامیابی. افغانستان کے بعد یو اے ای کو بھی شکست دے دی. شارجہ میں 31 رن سے میدان مارا. اماراتی ٹیم 208 رنز کے تعاقب میں 176 رنز پر محدود رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.